امیر کی کتاب میں سے زبور نمبر 116 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کی تشریح جو ہونے والی ہے ہم ساروں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جو تلاوت کیا گیا متن ہے، زبور نویس اس زبور میں ایمانداروں کو ایک ایسی تسلی دیتا ہے، جتنے بھی لوگ جو بائبل کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے، ایک تسلی ہے کہ جو ایماندار شخص ہے اس کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہے۔ پلیز بیٹھ جائیے، پلیز بیٹھ جائیے۔ لکھا ہے، خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ کس کی نگاہ میں؟ خداوند کی نگاہ میں۔ آج کا جو غالب مضمون ہوگا وہ ہے خداوند کی نگاہ میں مقدس شخص کی موت کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی موت کیسے گراں قدر ہے۔ گراں قدر جو لفظ ہے، اس کا جو اردو میں تلفظ جو مطلب ہے، معنی مفہوم ہے، وہ ہے عالی مرتبہ، صاحب اعزاز، انعامات حاصل کرنے والا۔ جو تلاوت کیا گیا متن ہے، لکھا ہے خداوند کی نگاہ میں، کسی انسان کی نگاہ میں نہیں۔ مقدس شخص جو ہے اس کا مطلب ہے، مقدس شخص کا مطلب ہے، لکھا ہے مقدسوں، اور مقدس لوگ یعنی الگ کیے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، نایاب لوگ، عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس لوگ، کریم اور شرفا لوگ، وہ لوگ جن کو خدا پسند کرتا ہے، وہ لوگ جو اپنی زمینی زندگی میں خدا کے آئین، اصول و ضوابط، قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی زندگی تن من دھن سے خدا ثالوث کے نام کرتے ہیں، جو وہ دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں، جو وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جب وہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، ان کی موت خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہوتی ہے، عالی مرتبے والی، اعزاز والی، عزت والی، قدر والی، اہمیت والی۔ اور وہ بالکل وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہیرے نایاب ہوتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو بائبل کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ان کی موت جیسے ہیرے قیمتی ہیں، بالکل ایسے ان کی موت قیمتی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کی دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ارد گرد موت رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ موت ہمیں کہیں سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے حادثات کی صورت میں، کہیں ہسپتالوں میں بیماریوں کی صورت میں، اور کہیں مقدس اجتماعات میں اور جلوسوں میں بم دھماکوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ اور انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ خودکش حملہ اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتے ہیں، اور کئی بے گناہ لوگوں کی جب جان لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے، جو خیال ہوتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری موت گراں قدر ہوگی، ہماری موت قیمتی ہوگی۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے گراں قدر موت ہے کیا، کن کو ایسی موت نصیب ہوگی۔ لفظ موت جو ہے یہ بھیانک ہے، انسان اس سے ڈرتا اور کانپتا ہے، انسان کی زندگی میں یہ لفظ بہت ڈر کا حامل ہوتا ہے، انسان اس سے ڈرتا اور کانپتا ہے۔ ایک شخص کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا شخص جو بہت گنہگار تھا، وہ کہتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے گناہ، سوائے گناہ۔ وہ روتا اور چلاتا رہتا ہے، کئی بار سوچتا ہے اگر میں آج مر گیا تو میری موت ذلت اور رسوائی ہوگی، مجھے آگ کا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں ہمیشہ کی آگ ہے، جہاں رونا ہے، جہاں ماتم ہے، چیخ و پکار ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ لیکن خدا نے اس کے دل میں خوف ڈالا، ایسا ہوا کہ ایک دن چرچ میں جاتا ہے،
जब चर्च में जाता तो पादरी साहब पैगाम तौबा पर दे रहे होते हैं कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गया। वो पैगाम उसके दिल पर लगा, उसके जहन को, सोचों को उसने उस पैगाम ने तब्दील किया। उसने पादरी साहब से कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। जब उसने तौबा की, पाक सैक्रामेंट से गुजरा, तो पादरी साहब ने कई दिन के बाद जब उसे मिले, इबादत के बाद कहते हैं मैं आपको मिलना चाहता हूँ। जब उससे पूछा गया कि अब आपको कैसा महसूस होता है, तो उसने कहा पहले मैं मौत से डरता था, अब मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ईमानदारों की मौत खुदा उनकी निगाह में गिरा कदर है। ईमानदारों की मौत खुदा उनकी निगाह में गिरा कदर है। पहले मैं डरता था कि मुझे मौत आ जाएगी, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं, अभी इसी वक्त भी मौत मुझे आ जाए, मुझे पता है मेरा खुदावंद मेरा इस्तकबाल करेगा। हालेलुया। इस ज़बूर में, ज़बूर 15 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। इंसान जब तक जमीन पर जिंदा है तब भी वो बंदगी कर सकता है, तब भी वो खुदा के कलाम को पूरा कर सकता है, उसके आइन, असूल और ज़वाबित कवानीन पर चल सकता है। लेकिन मौत के बाद उसके पास कोई मौका नहीं है। मौत के बाद उसके पास कोई भी मौका नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं हमारे अजीज़ व कारब वालिदैन, बहन भाई किसी ना किसी इदारे पर काम करते हैं, और जब गवर्नमेंट अदारों में काम किया जाता है उसके बाद रिटायरमेंट भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो गिले शिकवे करते हैं कि अदारे में हमने इतने साल मेहनत की, इतने साल खिदमत की, और इस अदारे ने हमें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज जिसके बारे में हम सीखेंगे वो बाइबल का खुदा है। जब हम सच्चे दिल से उसकी बंदगी करते हैं, वो हमें दौलत दे या ना दे, वो हमेशा की जिंदगी हमें जरूर देता है। उसकी मौत गिरा कदर होती है। वो शख्स जो ईमानदार शख्स जो खुदाए सालूस को मान लेता है, उसकी खिदमत करता है, उसे तन मन धन से कबूल कर लेता है। और हर ईमानदार की ये ख्वाहिश है, ये प्यास है कि जब मैं मरूं तो मेरी मौत गिरा कदर हो। हर ईमानदार की ये ख्वाहिश होती है कि जब मैं दुनिया फानी से कूच कर जाऊं तो मेरी मौत गिरा कदर हो। आप सब जानते हैं जब कोई आर्मी में जब शहादत नोश करता है तो एक दस्ता आर्मी का एक दस्ता उसे बड़े एजाज के साथ सुपुर्दे खाक करता है, बड़े एजाज के साथ सुपुर्दे खाक करता है। और क्या करता है वो शख्स, जंग करता हुआ जब वो शहादत नोश करता है तो सुपुर्दे खाक किया जाता है। लेकिन ईमानदार शख्स जब वो पैदा होता है और जब वो जितनी उसकी ज़मीनी जिंदगी होती है, ईमानदार शख्स भी जंग करता है। और वो जंग किससे है? इब्लीस से है। और जो इब्लीस से जंग करते हैं वो फतह पाते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनकी मौत गिरा कदर होती है। इज्जत वाली, कीमती, अहम, और वो लोग खुदावंद की नजर में अलग किए हुए बरगजीदा लोग होते हैं, नायाब लोग होते हैं, उम्दा और आला, नफीज, करीम और शुरफा लोग होते हैं। गिरा कदर मौत के हकीकी हकदार कौन है? तो सुन लीजिए, जो बाइबल के खुदा पर ईमान रखते हैं और जो अपनी जिंदगी तन मन धन से बाइबल के खुदा पर वार देते हैं, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, अपनी जमीनी जिंदगी में उसे अव्वल दर्जा देते हैं। तो बाइबल का खुदा ये कहता है, मैं तेरा हरावल और चंडावल हूँ, मैं तुझे आगे और पीछे से घेर लेने वाला हूँ। तो दो शख्सियात का जिक्र आपके सामने करूंगा, गौर से समाअत फरमाइएगा, जिनकी मौत जब हुई तो माशरे की नज़र में कैसी थी और खुदा की नज़र में कैसी थी। दो अहम शख्सियात जो शायद आज के माशरे के मुताबिक या उस वक्त के कल्चर, सकाफत, हालात व वाक़यात, मजहबी सोच के मुताबिक उनकी मौत पसमानदगी, जिल्लत, रुसवाई, शर्मिंदगी, मायूसी वाली मौत थी लोगों की निगाह में, लोगों की निगाह में। अगर आप मुकद्दस लूका तबीब का इंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ गरीब लाजर का हमें जिक्र मिलता है। इसकी मौत गुर्बत वाली मौत है। ये शख्स गरीब है और ये शख्स
गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं करा सकता और ये एक अमीर शख्स के दरवाजे पर पड़ा हुआ है। ये अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जब ये दुनिया फानी से कूच करता है तो देखने वाले लोग उस वक्त के कल्चर, सकाफत, हालात और वाक़यात के मुताबिक उस जमाने के लोग कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि इस शख्स की मौत गिरा कदर है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है जब वो मर गया तो वो बाप इब्राहिम की गोद में बैठा है। लोगों की नजर में उसकी कदर हो या ना हो, लेकिन वो बाप इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ दिखाई देता है। उसकी मौत खुदावंद की निगाह में गिरा कदर थी, अगरचे लोगों की निगाह में उसकी मौत गुर्बत, जिल्लत और शर्मिंदगी की मौत थी, लेकिन खुदावंद की निगाह में उसकी मौत गिरा कदर थी। और दूसरी शख्सियत का जिक्र रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है। रसूलों के अमाल में 7वां बाब मुकद्दस स्तिफनुस का हमें जिक्र मिलता है। जब इसको संसार किया जा रहा था, जब इसको संसार करना लानती मौत थी, जो शरीयत के बारे खिलाफ बोलते थे, गलत बात करते थे, उसे सजा के तौर पर यह लानती मौत थी। जब उसे संसार किया जा रहा था, यह मौत लानती है, पथराव किया जा रहा था। तो गौर से सुन लीजिएगा, जब हम 7वां रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब पढ़ते हैं, उसे संसार किया जा रहा है। यह लोगों की नजर में जिल्लत, रसवाई, शर्मिंदगी की मौत है। यह बाइसे इबरत है, बाइसे सजा है। जब उसे संसार किया जा रहा है तो सुन लीजिए, वो लोग जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी, जमीनी जिंदगी बसर करते हैं, जब वो दुनिया फानी से कूच करते हैं तो क्या होता है। लिखा है, अगर आप रसूलों के माल उसका 7वां बाब 54 आयत से पढ़ना शुरू करें, फिर 55 आयत को पढ़े तो लिखा है, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। बाइबल में यह बयान है कि खुदा यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। यह शख्स जिस पर पथराव किया जा रहा है, यह शख्स बाइसे इबरत सजा पा रहा है। यह शर्मनाक मौत है। लोगों की नजर में यह मौत जो है शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यह शख्स जैसे ही इसकी जमीनी आंखें बंद होने वाली हैं, आसमान उसके लिए खुल गया। खुदा यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़ा ऐसी रूह का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके हुजूर मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। लोगों की नजर में यह मौत शर्मिंदगी का बायस थी। लोगों की नजर में यह मौत बायसे इबरत थी, बायसे सजा थी। लेकिन जब वो अपनी जमीनी आंखें बंद करता है, उसकी रूहानी आंखें खुलती हैं, वो कहता है कि मैं आसमान को खुला और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। जब ईमानदार शख्स उसकी जमीनी आंखें बंद होती हैं तो यकीन कीजिए आसमान खुल जाता है, खुदा यीशु मसीह खड़ा हो जाता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये जान देने तक वफादार रहा और इसने वो मौत का एजाज हासिल किया जिसके बारे में कहा गया है, ईमानदारों की मौत गिरा कदर है। ईमानदारों की मौत क्या है? गिरा कदर है। अगर आप इब्रानियों के खत को पढ़ें 11वें बाब को, तो उसमें लिखा है ईमान के सूरमाओं का तस्करा हमें मिलता है। कैद किए गए, संसार किए गए ईमानदार लोग आरे से चीरे गए, तलवार से उनके सर कलम कर दिए गए। भेड़ों और बकरियों की खाल, गाय की खाल में सीकर भूखे कुत्ते और शेरों के आगे डाल दिए जाते थे। ये तमाम की तमाम अमवात जो थी शर्मिंदगी का बायस थी, लोगों के लिए बायस इबरत थी कि कोई शख्स यीशु का नाम ना ले, इसका इनकार कर दे। लोगों को ऐसी सजाएं दी जाती थी। और नेहरू बादशाह के दौर में मुल्क फलस्तीन में पहली सदी में जब सजाएं दी जाती थी तो मुल्क फलस्तीन में जो मैदान होते थे पिल्लर लगा दिए जाते और ऐलान किया जाता था कि शाम को मसीह के मानने वालों को जलाया जाएगा। उन्हें परखना कर दिया जाता, पिल्लरों के साथ बांध दिया जाता और जब बांध दिया जाता था उन पर तेल छिड़ककर जब उन्हें जलाया जाता था फतह की ललकारें मारते थे और साथ ये कहते थे कि इनको जलाए जाने से रोशनी होती है। और वो रोशनी आज मेरे और आपके हाथ में है।
हालेलुया। हालेलुया। रोशनी आज मेरे और आपके हाथ में है। लोगों की नजर में ये मौत जिल्लत वाली होती थी, उन्हें जलाया जाता था, आरे से चीरा जाता था और उन्हें कैद किया जाता, संसार किया जाता था। लोगों की नजर में ये मौत बायसे इबरत और बायसे सजा थी, लेकिन बाइबल के खुदा की निगाह में ये मौत इज्जत वाली गिरा कदर मौत। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में जो लिखा है कि ईमानदारों की मौत गिरा कदर है। आज हम जो सीख रहे हैं, हमें शायद इंसान वो प्रोटोकॉल दे या ना दे, वो इज्जत दे या ना दे, लेकिन बाइबल का खुदा जब ईमानदार शख्स वो जवानी में, वो बचपन में, वो बुढ़ापे में दुनिया फानी से कूच कर जाए, उसके लिए आसमान खुल जाता है, उसको वो प्रोटोकॉल दिया जाता है जो ना आर्मी दे सकती है, ना कोई और शख्स दे सकता है। उसके लिए आसमान खुलता है, फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसका इस्तकबाल करता है। और आज जो खूबसूरत बात मैं ख्याल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, खुदा के कलाम के मुताबिक जो ईमानदार शख्स जमीनी जिंदगी में खुदा के कलाम की ताबेदारी करता है, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने आप को तन मन धन से मसीह के नाम करता है, उसके लिए खूबसूरत वादे ये हैं। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मरदम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहेंगी, पहली चीजें जाती। जो जमीनी जिंदगी की जो जरूरियात हैं, जो मसाइब हैं, जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, जो दुख हैं, जो रंज हैं, जो इंसान की जिंदगी की तकालीफ है, वो जाती रहेंगी। और खुदा की तरफ से हमें वो एजाज हासिल होगा जो ईमानदारों को होता है। हम खुदा का दीदार करेंगे, हम खुदा के रूबरू होंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। जहाँ खुदा यीशु मसीह होगा वहाँ हम भी होंगे। और ज़बूर नवीस क्या कहता है, मेरा जो गुनाह है मेरे गिरंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे गिरंदा। अगर आज हमारी जिंदगी में गुनाह है, अगर हम गिरा कदर मौत चाहते हैं कि हम जब दुनिया फानी से कूच करें तो हमारी जो मौत है वो खुदावंद की निगाह में क्या हो, गिरा कदर हो, तो आज अभी वक्त है, मौका है। हमारी बहन हमें ये सिखा कर चली गई है कि मैं भी चलने वाली हूँ और पीछे हम भी जाने वाले हैं। किसी का भी यहाँ मुकाम असली नहीं, बल्कि हम क्या हैं, आरजी हैं। और हमें ये सोचने की जरूरत है। मौत भयानक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुकद्दसों के लिए मौत भयानक नहीं। रसूलों ने अपनी मौत की ख्वाहिश की, रसूलों ने अपनी मौत की ख्वाहिश की, जबकि हर इंसान जिंदगी की ख्वाहिश करता है। लेकिन जब हम रसूलों के अमाल पढ़ते हैं या अहदे अतीक को देखते हैं, सिदरक मेशक अब्दुल-नजूर के सामने जलती आग की भट्टी है, लेकिन उन्होंने इस मौत से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगरचे हमारी मौत भी वाक़या हो गई तो भी इन लोगों की नज़र में हमारी मौत की कोई कदर हो या ना हो, लेकिन बाइबल के खुदा के हजूर हमारी मौत क्या है, गिरान की कदर है। पतरस कहता है मुझे सीधा नहीं, क्योंकि सीधा मेरे आका को, मेरे खुदावंद को, मेरे उस्ताद को सीधा सलीब पर चढ़ाया गया था। ये मौत की ख्वाहिश है कि मुझे उल्टा सलीब चढ़ाया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी मौत इन इंसानों के सामने कोई कदर और कीमत नहीं रखती, लेकिन जिसके हम पैरोकार हैं उसके सामने हमारी मौत क्या है, पौलुस रसूल कहता है कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। तो मेरे अजीजों, आज हम सोचें मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी में कहीं अगर गुनाह है तो हमारी मौत खुदावंद की निगाह में गिरा कदर नहीं होगी। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है तो तौबा कीजिए, ताकि जब हम दुनिया पानी से कूच करें तो हमारी मौत की कदर हो। जैसे स्टिफनेस को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, बिल्कुल ऐसे ही खुदावंद मुझे और मेरे और आपको भी आपके इस्तेमाल के लिए भी लिखे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बड़ी